Hello friends, welcome to our channel Card and Loan Official. Today we are going to start a new variant or a new version of our Card and Loan Official channel, and that is called Interview with Iqbal. Our first guest in Interview with Iqbal is none other than Pritesh, who is a cool, calm and composed guy. One of the best team leader that I have ever seen. And whenever I meet with him, the gesture that he has, the way he greets people is awesome. He is a superhero in his own life, and we will try to understand about his life. We'll try to learn about his journey. So please welcome our guest, none other than Pritesh. Thank you, Pritesh. Thanks for coming and thanks for being a part of our channel. Thank you to you and heartiest congratulations on starting the new channel. It did not give me also a chance to congratulate you on this. So I take this opportunity and thanks a lot for inviting me. Thank you. You are our first guest and you are one of the most important persons. Thank you. So what we would like to do is we would like to understand about your life, आपकी जर्नी कैसे शुरू करी, कहाँ से शुरू करी, क्या चला, क्या हुआ, सब कुछ, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि मतलब उनकी लाइफ में जो होता है वो कुछ अलग नहीं है, हम सब की लाइफ में एक जैसा ही है. For sure, I would like to always share that. First of all, hi everyone, and thanks to Iqbal sir for inviting me. It's first part itself regarding this new journey of your channel, new version of your channel. Well, about myself, born and brought up at Bombay in a very middle class family. Education wise, I was an average student. सारा एजुकेशन जो भी हुआ, it was there back in Bombay. Few part at Vile Parle, few at Dombivli. Did my graduation over there. Post that, then started parallelly. I was more interested or more inclined due to the studies of college and other things. I was more inclined towards communication. Job wise अगर मैं बात करूँ तो job चालू हुआ when I was learning. I had a keen interest in learning C programming. It was a boom at that time. वो लर्न करने के लिए उसकी जो फीस थी, इट वॉज बीइंग बिट हायर. सो व्हाट आई प्लान्ड वाज आई यूज्ड टू टीच द जूनियर्स रिगार्डिंग फॉक्स प्रो प्रोग्रामिंग, व्हिच वाज वन लेवल डाउन, एंड दैट यूज्ड टू कॉम्पनसेट फॉर माय फीस इन सी प्रोग्रामिंग. दैट इज हाउ द फर्स्ट जॉब स्टार्टेड टेक्निकली. पोस्ट दैट देन वाज द एजुकेशन वाज कंप्लीटेड. उसके बाद जो जॉब जर्नी चालू हुआ, इट हैज़ ऑलवेज बीन एज ए सेल्स ओनली. Being a passion, I was always more interested in knowing कि सेल्स कैसे होता है, क्या होता है, किस चीज़ के लिए होता है, या किस तरीके से बेचा जाता है. That was more keen part for me. वहाँ से वो जर्नी चालू हुआ till today. It happened that way. अच्छा, आपने भी बताया कि आपने जब सी लर्निंग शुरू करी, इन्होंने आईटी में काम करा. पहले आईटी का एक वी ऑल नो कि मतलब एक क्रेज़ चल रहा था, मतलब सारी दुनिया को देखे तो वो आईटी की तरफ जा रही थी. आईटी में पढ़ाई करते करते सेल्स में एंटर करना कैसे, मतलब यू डिडंट गेट क्लियर कि मतलब सेल्स में एंटर करना है, क्या होगा, डोर टू डोर जाना है, लोगों से मिलना है, बातें करनी है, उनके दरवाजे खटखटाने हैं, ना सुनने की आदत पड़नी ज़रूरी है. तो कैसे आपने ये इसको लिया? I took it in another aspect. I always wanted, as I said, I was very keen on knowing कि ये प्रोसेस होता कैसे. और आई हैड बीन अ बिलीवर कि जिस चीज़ का डर लगता है उसको पहले करो. तो जिस चीज़ को निकालना था, जिस चीज़ को समझना था, वो चीज़ करने के लिए आई हैड टू पुश माई सेल्फ इनटू सेल्स. दैट वाज द फर्स्ट थिंग which I tried out doing with my first job, which I grabbed regarding selling water purifiers. Because hardly at 6:30, 7 o'clock I used to knock a door. Sir, ये हमारा product है. Of course, prior appointment. That is wherein I started getting into those corporate and clear things. Because unless and until you have an appointment, never go to a restaurant. It started right from there. तो वो एक professionalism, उस पर खुद को groom करना, that took me to second level of telecom job, wherein I started back in my home country. Same took me over here in UAE as a telecom salesperson. Then since last about 3.5 years it has been in banking sector, purely into banking sector, which I myself wanted to explore something new, which I did not know. I wanted to know कि इसमें और क्या हो सकता है, what it is exactly. इसमें मैं खुद को कैसे पॉलिश कर सकता हूँ. That's the reason. तो आपने देखा कि मतलब अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है. Wherever there is a will, there is a way.
ही वांटेड टू डू सी, ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग। अपनी सी प्रोग्राम को सीखने की जो ज़रूरत थी उसके टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने पूरी जो फीस है वो उसको कवर करने के लिए इन्होंने अल्टीमेटली ये करा कि इन्होंने खुद पढ़ाना भी शुरू करा ताकि उससे पैसे वो उनको मिल सकें और वो ही कैन टेक केयर ऑफ स्टडी। पैरेलली ही स्टार्टेड डूइंग सेल्स, जो बहुत अच्छा करना शुरू करा उन्होंने। एंड देन लाइक सेल्स वगैरह करते करते उसके बाद ही गॉट इनटू बैंकिंग। ही केम टू दिस कंट्री, ही माइग्रेटेड, बैंकिंग में आए, बैंकिंग में काम कर रहे थे। अच्छा प्रीतेश, जितना मुझे पता है कि मतलब आपने सेल्स का काम शुरू किया, अच्छा कर रहे थे और आपको बहुत वक्त लगा एक इस पोजीशन पे आने में जहाँ पे आप मतलब एक टीम लीडर हैं। और आप कभी डिसहार्टेंड फील नहीं किए कि मतलब मेरे साथ के लोग, मेरे सामने जो मतलब जिनको आपने मतलब एज अ साथ में देखा होगा ट्रेनिंग लेते हुए, काम करते हुए, शायद आप कितना परफॉर्म भी नहीं कर रहे बट वो आपसे ज़िंदगी में आगे निकल रहे थे, वो शायद ATL बन रहे थे बट आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में थे और आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो कैसा लग रहा था उस वक्त आपको? यस, इट फेल्ट बैड। एक समय था जहाँ पर ये चीज़ बहुत चुभती थी, बट अगेन इट एज अ लर्निंग। बस अगर वो बंदा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। Where I found कि नहीं, Krish, you are capable of doing this. There is something wrong that you are doing or you have not done till now. So that improvisation part I took care of, which took time. Obviously, it took somewhere around 3.5 years from that particular entry level job till date. So that corrections in my performance, that corrections in my sales, which I needed to learn, that took part. That is where in the journey took part. अच्छा, एक चीज़ जो प्रीतेश ने मुझे बताया था, शायद उसे अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को ही बता दूँ। प्रीतेश को ही वॉज कमिंग ओवर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, क्योंकि वो सेल्स थे और बाकी लोग उनके सामने ग्रो कर रहे थे। द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट प्रीतेश इज, बाकी लोगों की तरह ही वॉज नॉट जंपिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, ही वॉज इन दैट सेम ऑर्गेनाइजेशन, वहीं पे वो काम कर रहा था एंड ही प्रूव दिस पोटेंशियल टू ग्रो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। से दो चीज़ें जो ज़रूरी होती है एक स्टाफ में, एक होता है कमिटमेंट, दूसरा होता है कैपेबिलिटी, जो मैंने प्रीतेश के अंदर दोनों चीज़ें ही देखी। कभी आपको ऐसा लगा कि आपके नंबर्स नहीं हो रहे हैं प्रीतेश और आपको उसकी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, डिप्रेशन में जाने जैसी नौबत आ गई, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? काफ़ी बार हुआ सर, इट हैड बीन मेनी टाइम्स, बट दैट इज़ द स्टेज वेयर इन यू टेस्ट योरसेल्फ। अगर आप उस समय टूट गए तो यू विल नेवर एक्सेल इन लाइफ। सो उस समय अगर आप स्ट्रांग बनते हो, आप उस चीज़ पर काम करते हो कि बस क्यों नहीं हो रहा है, उस चीज़ पर अगर आप काम करना सीखोगे, निकालोगे, तो उसमें से आप बाहर आ पाओगे। दैट इज़ वॉट, या ऑब्वियसली इट टुक टाइम फॉर मी ऑल्सो, बट दैट इज़ वेयर आई लर्न कि नहीं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है। दिस डज नॉट मीन इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग, दिस डज नॉट मीन दैट आई विल नॉट परफॉर्म लेटर। This does not mean that my company is wrong or my managers are wrong. If I'm not performing, I'm being scolded for that. But that doesn't mean that I'm wrong or he is wrong. Putting myself into his shoes, I can understand कि नहीं, प्रीतेश ने कुछ गड़बड़ किया है। और जब प्रीतेश बनता हो तो प्रीतेश को ये समझना है कि बहुत गड़बड़ हुई क्या है, जिसकी वजह से आपको ये गाली खानी पड़ी। तो unless and until that frequency matches, no one can go. अच्छा, यहाँ पे मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि गाली का मतलब गाली नहीं होता है, ये हम लोग सेल्स में यूज़ करते हैं। गाली का मतलब होता है डांटना। ऑब्वियसली हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनके भी कमिटमेंट होते हैं, मैनेजमेंट की तरफ कमिटमेंट होती है। कॉर्पोरेट लाइफ में एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन टू बी स्पेसिफिक, टू बी प्रिसाइज। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो प्रीतेश का कहने का मतलब ऑब्वियसली वो सेल्स में है और हम लोग मतलब कई बार ज़बान को थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि डांट खाना, और डांट खाने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और उस वक्त आपको इवॉल्व होना पड़ता है। तो आई थिंक प्रीतेश बहुत अच्छा करा। मतलब अच्छा प्रीतेश, और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप जब कहते हैं इसके बारे में कि पहले आप सेल्स में, अभी आप एक टीम मैनेज कर रहे हैं, कितने लोगों की टीम होगी लगभग? इट इज़ अराउंड 13 लोग। अभी फिलहाल 10 हो गए वापस। कोई बात नहीं है, मतलब वो तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। अभी जब आप टीम मैनेज करते हैं तो आप फिर क्या देखते हैं, मतलब दोनों प्रोफाइल का प्रेफरेंस क्या है जब आप सेल्स के बंदे को मैनेज कर रहे हैं और टीम को मैनेज कर रहे हैं?
दोनों में फ़र्क ही क्या दिखता है? बिगेस्ट डिफरेंस, प्रीवियसली इट वॉज ओनली मी, मुझे सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस देखना था। अभी मुझे जो मेरी टीम है, 11 अलग अलग बंदे हैं, 11 अलग अलग दिमाग हैं, तो वो सारे दिमागों को अलाइन करवा के एक सिंगल लाइन में, जिसमें विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्ट, अल्टीमेटली बेनिफिटिंग दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। दिस इज़ व्हाट आई नीड टू बी फोकस्ड ऑन, कि मैं मेरी टीम का जो बंदा है उसका खुद का बेनिफिट कैसे हो, द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर वर्किंग फॉर उसका बेनिफिट कैसा हो, इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट दैट विल बी सेल। ये तीनों चीज़ें मिला के अल्टीमेट गोल बनता है, बस दिस इज़ द वे यू नीड टू लीड इट। प्रीतेश, एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करता हूँ, हर टीम में 3 तरीके के लोग होते हैं, मेरा मानना है। मतलब ऑब्वियसली अलग लोगों के अलग तरीके होते हैं, कुछ लोगों के ज़्यादा भी होते हैं, कुछ कम। एक जो है वो सेल्फ ड्रिवन है, मतलब उसको आप पूछो नहीं पूछो कुछ भी करो वो अपना काम करता रहता है। अच्छा, ये मेरा सवाल ऑडियंस के तरफ से है, प्रीतेश के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते होंगे, तो पूछो नहीं पूछो अपना काम करो। दूसरे जो होते हैं उनको थोड़ा पुश करो तो बहुत अच्छा करते हैं, नहीं पुश करो तो वापस से खराब हो जाते हैं। तीसरे, आप जितना भी कोशिश करो, जितना भी पुश करो, मतलब वो एक कहते हैं ना कि मतलब एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं करना है। ये 3 तरीके के लोगों से आप किस तरह से डील करते हैं? मतलब हर तरीके के लोगों से कैसे डील करते हैं? 100% agreed, आपने अभी जो बोला, there will be 3 different types or more than that also, which we find into our sales model. First part जो आपने बोला, सेल्फ ड्रिवन है। ऑब्वियसली उनको सिर्फ एक बार बता दिया, बस दिस इज़ योर प्रोडक्ट, दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दे विल बी वर्किंग ऑन देयर ओन, सो नॉट टू वरी फॉर देम। यस, अ पुश इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड एट सम ऑफ द अदर टाइम, यहाँ तेरा लो जा रहा है, दिस इज़ द एरिया वेर इन यू नीड टू इम्प्रूव, दैट इज़ टेकन केयर फॉर दैट पार्ट ऑफ पीपल। सेकेंड पार्ट, टाइमली बार बार उन बंदों को हमें पुश करना पड़ता है, उन बंदों को इस चीज़ का एहसास दिलाना पड़ता है कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दिस इज़ वेयर इन यू आर फॉलिंग शॉर्ट। तो सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट फॉर द सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी, इट हैज़ टू बी अ डेली प्रोसेस। ये तेरा आज का टारगेट है। Yes, the approach becomes different for the first category, second category, third category. Approach different हो जाता है कि उसको किस तरीके से, first we need to understand what are the difficulties he is facing, what are the challenges he is facing in his day-to-day sales profile. उसे अगर कुछ दिक्कत जा रही है, उसको overcome कैसे करना है. If I am not knowing, I will be taking help of my seniors to resolve that particular thing, so that the executive he himself feels confident. He will be feeling कि नहीं, मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, now it is my turn to return back to my team. This is how that needs to be taken. और सबसे अच्छी चीज़ें जो होती है, जो आप अगर देखेंगे किसी भी सेल्स में, हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि ठीक है, एक टारगेट है और सेल्स करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी प्रोडक्ट का हो, चाहे वो बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, कुछ भी हो। हम सबसे पहले एक इंसान है, हर बंदा एक परेशानी से गुजर रहा होता है, चाहे वो परफॉर्मर हो, नॉन परफॉर्मर हो, तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में हो, वो एक परेशानी से गुजर रहा होता है, या फिर उसके अंदर कुछ खामियां होती हैं जो एज अ मैनेजर, मतलब या फिर एज अ टीम लीडर हमें समझने की ज़रूरत बहुत पड़ती है। उनकी परेशानियों को, उनके साथ एम्पथाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखा जाए तो ऑफिस में वो ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं, चाहे वो 8 घंटा हो या 7 घंटे हो या जो भी हो, ऑफिस में वो ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, हम उनका परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और एक बंदा अगर टीम लीडर है तो ऑब्वियसली वो एक तरह से उसका लोकल गार्डियन हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब चीज़ों को बेहतर बनाएं और इंश्योर करते हैं कि मतलब लोग जो हैं वो अपनी परेशानियों को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, क्योंकि परेशानियां सबके साथ होती हैं, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, परेशानियों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि उसको हम लोग एक बैक स्टेज दें जब हम प्रोफेशनली एक ऑफिस के अंदर हैं, और कोशिश करें कि ऑफिस के काम को भी हम लोग उतना ही इम्पोर्टेंस दें जो कि ज़्यादातर लोग देते हैं। तो प्रीतेश, अभी आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं कि मतलब चलो आपने एक जर्नी शुरू करी, आईटी से सेल्स में आए, एंड इवेंचुअली मतलब यू हैव ग्रोन ओवर द पीरियड। ऑफ कोर्स एक ह्यूमन वांट्स, या डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होता है, हम हमेशा जिस लेवल पे आते हैं हम कोशिश करते हैं कि और आगे जाएं। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब प्रोबेबली 4-5 साल डाउन दी लाइन आप अपने आप को कहाँ देखना
I will split it into two aspects. Professionally, मैं अभी जहाँ हूँ उससे ऑब्वियसली एक या दो स्टेजेस ऊपर मैं खुद को देखूँगा। उस चीज़ को करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एम आई कैपेबल ऑफ डूइंग इट, मुझे उतना समय मिल सकेगा नहीं मिल सकेगा, ये चीज़ मुझे लर्न करके आई वुड बी ऑब्वियसली लुकिंग माई सेल्फ एट टू स्टेजेस अप, गोइंग 5 years डाउन द लाइन. Personal life में there had been lot of things which I could not get into. For everybody, for every expat, what I believe is his family is his strength. वो उस family के लिए यहाँ पर आता है. Whoever it is, whether it is he or she, we come over here for our family. जो हमें नहीं मिल सका, वो उन्हें मिलना चाहिए. इस इंटेंशन से जब मैं काम करूँगा तभी मेरा ये सेकंड एस्पेक्ट होगा, तभी मैं जाके 5 साल बाद उनको 2 लेवल ऊपर देखूँगा. दैट इज़ हाउ आई वांट. तो बहुत ज़रूरी है काम करें, मेहनत करें. हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं, सबने कुर्बानियाँ दी हैं. इसलिए कुर्बानियाँ दी हैं ताकि हमारे जो परिवार हैं उनको एक बेहतर ज़िंदगी मिल सके. और सच बताएं तो यहाँ पे बस जो भी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तरीके से करें, बिल्कुल ईमानदारी से करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है. ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी होता है. और अभी फिल वक्त लाइक आई बिलीव कि अगर आप हमें कुछ एडवाइस देना चाहें, मतलब हमारे ऑडियंस को कि किस तरह से काम करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, क्या जहन में रख के काम करना चाहिए, फोकस कैसा होना चाहिए, तो आई थिंक ये एडवाइस के साथ हम इसको क्लोज करने की कोशिश करें. Advice, or I would say a learning, that has always been, as you had been always saying, learning is always a continuous process. जो जिस भी फील्ड में आपको first understand what the product is needed, understand your market, learn it so thoroughly that it will be any question that is coming out to you, you will be in a position to answer that. You will be in a position to let your customer know all the details. आपका कस्टमर आपके अलावा और कहीं नहीं जाना चाहिए. This is the first and foremost thing. Second thing, learn to deal with your challenges. Unless and until you yourself, सारी चीज़ें आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो सब आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, सब आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है. अगर आप खुद नहीं चाहोगे कि वो नहीं करना है तो नहीं. Unless and until you make a mindset, yes, I want to do this, unless and until you become that positive कि नहीं मुझे ये करना ही है, तब तक के वो चीज़ नहीं है. This is what I would like to advise. This only because I had seen this thing in the people whom I have met. उनके थ्रू ये चीज़ समझ में आई, वो मैंने मेरे में देखा कि ये तू गलत कर रहा है, इसको यहाँ रेक्टिफाई करना ज़रूरी है. हाउ दैट कैन बी रेक्टिफाइड, उसके लिए ये चीज़ करते हैं. थर्ड थिंग इज़ नेसेसरी. ये तीनों चीज़ें मिला के आगे बढ़ना ज़रूरी है. एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी प्रीतेश की, जो उसने मेरे ऊपर डाला है लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा, हो सकता है मैंने कहा होगा. Yes. बट लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सीखें, ज़रूर सीखें, सीखते जाएं. जो कर रहे हैं एक्सेल इन दैट. कभी किसी से कम्पीट ना करें. अगर कम्पीट करना ही है ज़िंदगी में तो खुद से करें. और दोस्तों, आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ. और प्रीतेश ने जो मुझे वक्त दिया अपनी छुट्टी में, वो बहुत बड़ी बात है. प्रीतेश, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. I am thanking you for doing this particular thing and wishing you all the very best. Lot of more episodes, lot of more viewers and subscribers to come. Thanks, Pritesh. Thank you so much. Thank you. Thanks. Thank you, guys.